नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बायो सेवर्थ लॉ का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पर बायो सेवर्थ लॉ उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायो सेवर्थ लॉ को यूज करते हुए डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे बायो सेवर्थ लॉ फॉर ए स्ट्रेट लाइन। बताया कि कोई वायर जो है कोई करंट जो है इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में अगर फ्लो हो रहा है तो उस करंट फ्लो के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे होगा, उसको हम लोग बाय यूजिंग बायो सेवर्थ लॉ विल कैलकुलेट। तो विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द बायो सेवर्थ लॉ बाय यूजिंग दिस using the Biot Savart law, using the we calculate the magnetic field. Okay, so I will go to the directly problem. So let us say that problem is we have actually I have done these things. So this is the problem. Here I have written problem. So that problem is the find the magnetic field at a distance s from a long straight wire carrying a steady current I. As I said in theory part of the this lecture, so whatever current is flowing in any line segment or any wire, that should be steady current. If current is steady, then one can observe a magnetic field as Biot Savart told us. Okay, so here this is the diagram I have shown. So this is the wire in which current is flowing. Let us say I current is flowing, that I steady state current is flowing along the wire, and this is the point P where we have to find out the magnetic field because of this current element which is flowing across the wire. तो let us assume that अब अगर इस वायर में हमें इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे. ओके, मीन्स आई विल चूज ए स्मॉल एलिमेंट current element on this wire and later and we'll try to calculate the magnetic field produced by this current element. Okay, and then we'll integrate and then we can find out the magnetic field due to a long straight wire. तो इसके लिए यहाँ पे let us assume that the current is I current is flowing and dl vector obviously this हमने यहाँ पे लिखा dl prime, so obviously this will be function of x prime y prime z prime, और ये जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज फंक्शन ऑफ x y z. वो हमने लिखा नहीं है, जैसा कि हमने थ्योरी पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो दिस इज dl वेक्टर, dl प्राइम वेक्टर आई हैव चोजन ऑन द वायर एंड I current is flowing in this displacement. तो current element will be how much? Current element will be equal to I into dl prime vector. So this will be the current element. Okay, so let us say this length and then we have chosen a perpendicular distance from the wire up to the point P. So this distance, let us say that is s. It is given in the problem also. Find the magnetic field at a distance s from the long straight wire. So this is the perpendicular distance, that is s distance from a long straight wire. ठीक है, okay. And let us assume that from this current element, the distance from the current element to the position, this position from where we have to find out the magnetic field, that is r vector. ठीक है, okay. So this is s vector, this is r vector, and this is the, let us say, l prime या l vector. And let us assume that this current element is making theta angle with respect to the position P. Okay, so this is theta, and this position is making an angle alpha with respect to the displacement vector. So this angle is alpha and this angle is theta. Obviously this total angle is 180. So this alpha will this angle we try to find out. So this is 90, this is theta, this is 90, so this is 90 minus theta. So this alpha will be equal to 180 minus 90 minus theta, that is 90 plus theta. Okay, so what is the Biot Savart law? So we know that Biot Savart law for a line segment, so we have written, if you remember the first equation from the theory part, that dB is equal to, that is mu cross I, mu 0 upon I, mu 0 upon 4 pi I in bracket dl prime cross product r unit vector upon r square, where this r unit vector, if you see, r unit vector is along this vector. Okay,
and this r is the magnitude of this, and dl vector, that is dl vector is along this direction. Okay, if you have chosen, let us say अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करते तो अगर मान लेते ये y है, ये ये z है, ये वाला dl z के लॉन्ग है, और ये अगर y है s जो y के लॉन्ग है, यहाँ कहीं x होता, तो इसका मतलब जो r यूनिट वेक्टर है, r यूनिट वेक्टर कहीं हमारा किसी डिफरेंट डायरेक्शन में होता, ठीक है, दैट इज अलॉन्ग द सम y एंड j के डायरेक्शन में आता, ठीक है। वो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, अगर आप किसी को सिंप्लिसिटी के लिए समझना है तो आप इसको इस तरीके से चूज करें कि ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हो, तीनों परपेंडिकुलर हो, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इन द कमिंग लेक्चर्स मे बी। सो इफ यू सी द फ्रॉम फिगर, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम फिगर द डी एल क्रॉस वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर, अगर इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो किधर जाएगा? इफ यू सी, this is pointing into the y, let us say z direction, and this is pointing into the some other direction. So if you try to find out, so we can write how it, that will point into the page, how it will, I will show that that is here I have elaborated. If you see here, the dl prime vector cross r unit vector, so that will be obviously that is equal to dl prime sin theta. So this is magnitude. Yeah, so here I have chosen alpha angle. So this is angle. So that is this is basically angle between the between r unit vector. So this angle, that is r unit vector, and this is dl, so that is basically alpha. So that is dl, so this angle, so this is dl vector and this is r unit vector, so this is angle between the both vectors, so that it will be dl prime sin alpha. Okay, I think आपको समझ में आ रहा है ये। फिर अगर देखें, so this dl prime वेक्टर क्रॉस r unit vector, अगर इसको लिखा जाए तो dl prime, और अल्फा की जगह हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, वी कैन राइट साइन 90 प्लस थीटा, सो दिस साइन 90 प्लस थीटा विल गिव द डी एल प्राइम कॉस थीटा। ओके ओके, इट मीन्स डी एल प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू डी एल कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू है। ओके, अब अगर फिगर में और चीज़ देखें तो हम लोगों ने थीटा की वैल्यू डिफाइन किया था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेट अस से एल प्राइम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बिकॉज एल प्राइम इज नॉट गिवन, मीन्स एल द लेंथ ऑफ द वायर इज नॉट गिवन, so this is theta, so we can write tan theta is equal to L upon S. So I have written tan theta is equal to L upon S, so we can find out the L. तो L प्राइम क्या हो जाएगा? L प्राइम इज इक्वल टू S tan theta, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ यू डिफरेंशिएट, बिकॉज हियर DL प्राइम इज देयर, तो वी हैव टू फाइंड आउट DL प्राइम वैल्यू। तो इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तो थीटा, तो दैट विल बी DL प्राइम इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इफ यू डिफरेंशिएट इट, सो दैट इज S sec स्क्वायर थीटा d थीटा, DL प्राइम इज इक्वल टू, जस्ट इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो DL प्राइम इज इक्वल टू S सेक tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं S अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, और DL प्राइम इज इक्वल टू S अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। इसका मतलब जहाँ पे DL प्राइम है इसको जगह हम लोग S अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आगे आएँ तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या अगर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें इस फिगर से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी S अपॉन आर वेक्टर। ओके, तो दैट इज अगर लिखें तो हमने लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू S अपॉन आर, तो हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज S? S विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, या हम लोग R फाइंड आउट कर, अगर यहाँ पे देखेंगे अगर इस फार्मूला में देखें तो यहाँ पे क्या है? DB इज इक्वल टू DL 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब हमें 1 अपॉन आर स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज आर इज नॉट नोन, ये R जो है ये नोन नहीं है। नोन क्या है? S हमें नोन है, ठीक है, S नोन है, करंट नोन है, ये दो चीज़ें नोन है, करंट नोन है, S नोन है, और वी कैन फाइंड आउट द थीटा आल्सो, दैट थीटा इज नॉट नोन बट वी कैन एज्यूम द थीटा इज आल्सो नोन। ओके, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो नोन क्वांटिटी के बीच में फाइंड आउट करना है। अब अगर फाइंड आउट करें तो क्या मिल जाएगा? इफ यू सी, तो इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन S, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर था वहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन S स्क्वायर। सो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू whole wire, so that B vector that will be equal to integral of dB, so the dB was the magnetic field due to a current element, that was the because of the segment, current segment, that is IDL। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू 0/4 पाई आई DL प्राइम कॉस थीटा आर स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि हमने अभी निकाला था कि जो हमारा DL वेक्टर DL प्राइम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू DL कॉस थीटा,
उसकी जगह हमने सीधा लिख दिया डीएल प्राइम कॉस थीटा और 1/r², तो r² था। तो जो पहला इक्वेशन था वो इक्वेशन मॉडिफाई होकर ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हमें डीएल की वैल्यू नोन है और 1/r² की वैल्यू नोन है, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डीएल की वैल्यू ये है, दिस इज, एंड r² की वैल्यू हमने ये निकाला है, दिस है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे वही कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, μ0I/4π इंटीग्रल तो cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1/r², तो cos स्क्वायर थीटा अपान s², ये हो गया। और डीएल प्राइम की जगह पे s अपान cos स्क्वायर थीटा दैट इज cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो s कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/s बचेगा और यहाँ पे cos थीटा डी थीटा बचेगा, ठीक है। तो 1/s दैट इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो इंटीग्रेट कहाँ किसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट एक हमने फिर माना कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हमने सेगमेंट लिया था, वो जो पॉइंट पी से एक सेगमेंट एक इंड सेगमेंट का θ2 एंगल बना रहा था, एक सेगमेंट उसका θ1 एंगल बना रहा था। उसी फिगर में अगर जाएंगे तो हमने उसी फिगर को फिर ड्रा कर दिया। सो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ डीएल। तो डीएल जो है उसका एक इंड जो है θ1 वेक्टर बना रहा है पी से, दूसरा एंगल θ2 बना रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो है तो हम लोग फील्ड ऑफ स्टेट सेगमेंट वायर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एंगल θ1 एंड θ2 कैन बी फाइंड आउट। तो अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा कि μ0I/4π इंटीग्रल θ1 to θ2 दैट इज cos थीटा डी थीटा। मैं यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर दिया, दैट इज θ1 to θ2, ओके। तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, दिस b इज इक्वल टू μ0/4π I/s cos θ2 माइनस cos θ1। रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड इन कमिंग lectures या कमिंग when we will solve some problems, so this formula may be directly used by you, or I will directly use this formula, okay. Now if you have, this is the magnetic field due to a segment, wire segment, yeah, a finite length. This is basically for finite length. But what problem in what is given in problem, सवाल में क्या दिया, सवाल में ये दिया है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वायर की लेंथ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लेंथ डिफाइन करके एज्यूम किया था कि अगर फाइनाइट वायर का लेंथ है तब अगर हम उसमें पी पॉइंट से θ1 अगर θ2 एंगल बनाता है तो हम लोग इस तरह से इतना मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो अगर देखें यहाँ पे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। इफ यू सी दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन द करंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द पोजिशन P from at which we are calculating the magnetic field, but it does not depend upon the length of the wire, ठीक है। that is independent of the length of the wire, okay, but it depend upon the sin θ1 माइनस sin θ2। जो लेंथ है वायर का, वो जो पॉइंट P है उसका फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड कितना एंगल बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट अस से इन केस आप इनफाइनाइट लेंथ अगर वायर लेते हैं, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट लेते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि दिस θ2 विल गो समथिंग इनफाइनाइट और दिस θ1 विल आल्सो रन फॉर इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट ले देंगे तो अगर θ1 की वैल्यू निकालें तब ये θ1 है, ये इनफाइनाइट कब होगा, जब ये वैल्यू 90 डिग्री, ये एक वैल्यू जो है ये जो है प्लस π/2 हो जाए, 90 हो जाए, और दूसरा माइनस π/2 हो जाए, मतलब P से, तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट वायर दे देगा। फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर दिस θ विल गो टू द माइनस π/2, ओके, एंड दिस θ2 विल गो टू द प्लस π/2। अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, μ0/4π I/s sin π/2 और sin माइनस थीटा दैट इज sin थीटा माइनस sin थीटा, सो दैट इज प्लस sin π/2। तो हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो sin π/2 1 एंड sin π/2 1, सो दैट इज 2। तो ये दोनों 2 दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0/2π I/s, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, and this one was the magnetic field due to a finite length of wire, and this is due to the magnetic field due to a infinite length of wire, long straight wire, okay. If you see this magnitude of magnetic field is basically, if you see here, that is independent of the z in theta, that is independent of theta also, and that is independent of z means that is independent of the length of the wire, okay. The length of the z एक्सिस हमने रखा था, तो लेंथ ऑफ द वायर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। If you try to draw the, let us say this is the magnitude, this is value of magnitude of the magnetic field.
अगर इसका वेक्टर लिखते हैं हम लोग, ओके, तो वेक्टर लिखते क्या होता है, वी नो, अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा था कैंपस से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, वायर के अक्रॉस सर्कुलेट करता है। अगर आप अपना राइट हैंड लें, अंगूठा जो आपके वायर की डायरेक्शन में है, तो जो उंगलियां मुड़ेंगी, अगर आप वायर को अपने उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करें, जो उंगलियां मुड़ेंगी जिस वायर, तो अगर आपके पंजे में वायर है तो अंगूठा वायर की डायरेक्शन में रहेगा, और जो आपकी उंगलियां होंगी अगर उसको सर्कुलेट कराएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सो दैट विल बेसिकली द थीटा यूनिट वेक्टर, मीन दैट इज सर्कुलेटिंग, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली एजुमेथल इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर अगर देखें तो जब एजुमेथल होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली पॉइंटिंग इनटू द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है और इसका डायरेक्शन जो हमेशा एजुमेथल है। ठीक है, सो दिस ऑब्जर्वेशंस वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इफ वी आर कैलकुलेट द ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, and note another thing you notice that the field is inversely proportional to the distance from the wire, just like the electric field of an infinite long charge। अगर आपको याद हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते थे, अगर एक लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो अलॉन्ग लाइन इफ लेमडा चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोगों ने वहाँ निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 दैट वाज क्यू लेमडा अपॉन आर था। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ क्या है, यहाँ पे म्यू 0/2 पाई आई अपॉन एस। सो दैट मीन्स दैट इज आई हैव रिटन दिस फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, तो दिस मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर गोइंग इन ए एनोलॉजी, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर और फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए हमने कैलकुलेट किया। अब हमने जब थ्योरी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हमने एक ऑब्जर्वेशंस बताया था कि अगर दो पैरेलल वायर हैं, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल वायर में अगर करंट फ्लो होता है, अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, थ्योरी में हमने पढ़ाया था पहले लेक्चर में। अगर इसके पहले लेक्चर में जाएँ, जब हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स शुरू किया था, वहाँ पर अगर जाएँ तो वहाँ हम वैसे मिलेगा। अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल क्यों करते थे, अगर अब हमें चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी मिल गई, तो हम लोग अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें क्यों होता है, तो हम लोग उसकी जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो लग रहा कोशिश करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं और रिपल करते हैं। हमने इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक इसी का पार्ट है, बट हमने अलग से टॉपिक डाल दिया, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर। ठीक है, तो एज एन application, let us find the force of attraction between two long parallel wire a distance d apart, carrying a current I1 and I2, as I have discussed in the beginning of the magnetostatic, जैसा हमने मैग्नेटोस्टैटिक में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर करते हैं तो हमने ऐसा आपने वायर पहले लेक्चर में देखा था। तो दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। वायर 1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, वायर 2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है। दोनों जो है एक दूसरे के से डी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ सिंबल बनाया है, क्रॉस सिंबल, और यहाँ पे एक डॉटेड सिंबल बनाया, सर्कल में घेरा हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लेट अस से वायर है, वायर 2 को लेते हैं सबसे पहले, या पहले वायर 1 को लेते हैं। वायर 1 को लेते हैं तो हमें पता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब दोनों करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें कि जो वायर 1 है, इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और कितनी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर जानने की कोशिश करें तो क्या होगा। तो जैसे अगर इसको लें, तो अगर आप लें तो क्या हो जाएगा, अगर ये वायर है, ठीक है, तो वायर 1 वायर 2, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें, जहाँ पर हमारा ये पॉइंटर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अगर वायर 2 पे कितना फील्ड होगा, कैसा दिखेगा, वो अगर ड्रा करें तो मान लेते हैं अगर दाहिना हाथ लें, अपना दाहिना हाथ पकड़िए और दाहिने हाथ की जो चारों उंगलियां उसको मोड़िए, सर्कुलेट करिए और अंगूठे को आप सीधा करिए, जैसे हमने फिगर में दिखाया था। तो आपका जो अंगूठा होगा वो वायर की डायरेक्शन दिखाएगा, वायर 1 है, ठीक है, और उंगलियां जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। तो अगर ऐसा रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह जाएगा।
अब अगर आप डी डिस्टेंस पे जहाँ वायर 2 अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कैसा दिखेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है जो हमारा पेज के अंदर जाएगा, मतलब उंगलियाँ आपके अंदर की तरफ जाएंगी, जो चारों उंगलियाँ सर्कुलेट करेंगी वो अंदर की तरफ पॉइंट करेंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस ऑफ वायर 2 ड्यू टू करंट या वायर 1 पॉइंटिंग इनटू द पेज, दैट इज अगर उसको डायरेक्शन दें इसका मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में, अगर ये वाई है और ये एक्स है तो ये जेड डायरेक्शन में माइनस जेड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। ठीक है, मतलब पेज के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब जो ऐसा पेज अगर देख रहे हैं तो पेज के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जस्ट अपने अंगुलियों को अगर रखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वायर 2 में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वायर 2 में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी करंट मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही होगा। तो वायर 2 की डायरेक्शन में आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उधर आप अंगुलियाँ रखें, अपना अंगूठा रखें और चारों उंगलियों को मोड़िए और सर्कुलेट करने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, अगर आप देखिए तो जो वायर 1 की जगह पर अगर आप देखेंगे तो जो उंगलियां हैं आपको निकलती हुई दिखेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू वायर करंट 2 ड्यू टू वायर 2 एट प्लेस ऑफ 1 दैट इज पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउट ऑफ द पेज शो करेगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू दिस करंट and this magnetic field is pointing into the page and this is due to this current I1. okay, I hope कि आपको यह समझ में आया है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप अपनी उंगलियों को, अपने दाहिने हाथ की जो पंजा है उंगलियां हैं चारों उंगलियों को मिलाइए, अंगूठा जो है उसको अलग खड़ा करिए और अंगूठे को वायर की डायरेक्शन में ले जाइए, उंगलियों को अपना थोड़ा मोड़िए, सर्कुलेट करिए, या अंगुलियों चारों उंगलियों से अगर वायर को पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जो आपकी चारों उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगी। एक बार वायर 1 को पकड़िए और एक बार फिर वायर 2 को पकड़िए, वायर 1 को पकड़िए और फिर देखिए कि मैग्नेटिक जहाँ पे दूसरा वायर वहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, और फिर वायर सेकंड को पकड़िए और फिर देखिए कि वायर 1 जहाँ पे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो हमने इलस्ट्रेशन किया, हमने इसलिए यहाँ पे माइनस जेड यूनिट प्लस जेड यूनिट वेक्टर में लिख दिया है। ठीक है, सो वही चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है। अब अगर हम लिखें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखें तो लेट अस से फ्रॉम एबव एग्जांपल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस डी, तो हमने भी पहला सवाल लगाया था। तो अगर लिखें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट I1 करंट फ्लो हो रहा है करंट वायर 1 में, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डी डिस्टेंस जहाँ पे वायर 2 है कितना होगा, तो हमने उसको नाम दे दिया B1 लेटर से। B1 विल बी इक्वल टू, हमने पहले भी सवाल लगाया था, एक वायर के कारण अगर एक वायर कोई वायर है अगर जेड डिस्टेंस पर रखा हुआ तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हमने भी इसके पहले जस्ट हमने दिखाया था, दैट इज दिस वन। सो दिस आंसर दैट इज वन मिनट, हाँ दिस वन। yes this one, यहाँ क्या है, that is mu 0/2 pi I upon s, where s is the distance from the wire and the point of observation। ठीक है, अब अगर ये आंसर यूज करते हुए अगर अपने इस प्रॉब्लम में सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड द mu 0/2 pi, करंट कितना है I1 ड्यू टू वायर 1 I1, डिस्टेंस कितना है d डिस्टेंस देख रहे हैं तो अपॉन d, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमें पता है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन माइनस जेड डायरेक्शन में जो पेज के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग इनटू द पेज दैट इज माइनस जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है हमें पता है कि लॉरेंज फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स का हमें फार्मूला पता था, लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ लाइन करंट दैट इज आई इंटीग्रल डी एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, तो डी एल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये वायर था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, अब इसमें दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर जो है एक फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो ये हमने दे दिया इसका नाम, लेट अस से F21, फोर्स इन वायर 2 ड्यू टू करंट एलिमेंट 1। क्या इसको बोलेंगे, फोर्स इन वायर 2 ड्यू टू करंट एलिमेंट 1। ठीक है, तो अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, दैट F21 विल बी इक्वल टू करंट क्या हो जाएगा I2। ठीक है, वाई में अब यहाँ पे फोर्स इसमें फोर्स ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फोर्स इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I2। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है I2। ओके, डीएल क्या है, अगर करंट डिस्प्लेसमेंट देखें तो डीएल किस डायरेक्शन में है, वायर किस डायरेक्शन में रखे हैं, वायर जो है लेटर से वाई डायरेक्शन में रखे हैं, ये वाई है ये एक्स है,
तो ये डीएल किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएल वाई डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं, तो डीएल वेक्टर हमने लिख दिया, डीएल का मैग्नीट्यूड दैट इज डीएल इंटू वाई यूनिट वेक्टर। फिर बी, ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बेसिकली दैट दिस वायर, तभी हमने लिखा है दैट इज B1, तो यहाँ पे B1 होना चाहिए शायद, हाँ यहाँ पे B1 होना चाहिए, लिखा हूँ B1, सो दैट इज B माइनस जेड यूनिट वेक्टर, तो ये वाई वेक्टर है, ये जेड वेक्टर है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस I2 B इंटीग्रल DL वाई यूनिट वेक्टर क्रॉस जेड यूनिट वेक्टर, दिस इज वाई जेड, ये माइनस हमने यहाँ बाहर रख दिया, तो वाई यूनिट वेक्टर क्रॉस जेड यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज एक्स यूनिट वेक्टर, एक्स यूनिट वेक्टर बराबर होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रख दिया, तो अगर लिखें ये B1 होना चाहिए था, B1, तो अगर यहाँ पे लिखे तो F21 इज इक्वल टू I2 इंटीग्रल DL B1 माइनस एक्स यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वायर वन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वायर 2 पे पॉइंट के अंदर लगेगा, और वायर 2 में भी करंट फ्लो हो रहा है, जो वायर 2 में फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो माइनस एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो ये अगर एक्स है तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पे F21 की डायरेक्शन इधर रखा है, इसलिए मतलब फोर्स जो है वायर 1 की तरफ लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हमने कर दिया। अगर ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग F12 कैलकुलेट करते, F12 मतलब कि वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते पहले, तो करंट I2 कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या वैल्यू आती है, वो भी वैल्यू आती है यहाँ पे B2 लिखते हैं, तो B2 विल क्या आता, B2 विल बी इक्वल टू म्यू 0/2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाता I2 हो जाता I2/D, और यहाँ पे क्या होता माइनस जेड जो है, माइनस जेड यूनिट वेक्टर वो क्या हो जाता प्लस जेड यूनिट वेक्टर हो जाता, ये होता ना I2 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फोर्स निकालते ऑन वायर 1 दैट इज F12, दैट इज फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू करंट 2, तब क्या हो जाता, तब यही फार्मूला आप लगाते हैं, ये वाला फार्मूला, सो दैट इज F12 विल क्या हो जाता, F12 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ I1 हो जाता, यहाँ पे DL दोनों में सेम है, DL वाई यूनिट वेक्टर हो जाता, और यहाँ B की जगह पर भी हमने निकाला था, तो क्या होता था, तो दैट इज म्यू 0/2 पाई I2/D प्लस जेड यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे प्लस जेड यूनिट वेक्टर हो जाता, ठीक है, तो ये करते तो यहाँ पे हो जाता वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर, और ये माइनस नहीं रहता तब, ठीक है। तब यहाँ पे F12 अगर निकालते तो सॉरी यहाँ पे I1 आता, I1 इंटीग्रल DL B2 प्लस एक्स यूनिट वेक्टर आता, ठीक है। तो अगर आप निकालते तो हमने लिखा है, अगर ये निकालते तो F12 निकालते तो म्यू 0/2 पाई I1 I2 D इंटीग्रल DL एक्स यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F21 I2 म्यू 0/2 पाई I1/D DL एक्स यूनिट वेक्टर। सो दिस मीन्स दैट अगर यहाँ पे देखें तो ये फोर्स की डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में है F21, और प्लस F12 जो है प्लस एक्स की डायरेक्शन में है। इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन अगर देखें तो वायर 2 की तरफ है, प्लस अगर देखें तो F12 प्लस एक्स डायरेक्शन में मतलब इस तरफ लग रहा है, और F21 माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इस तरफ लग रहा है। इसका मतलब अगर दोनों में करंट पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट हमने शुरू में बताया था, इसीलिए दोनों वायर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आपका हमको लग रहा है डाउट क्लियर हो गया, क्यों आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब पैरेलल करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वायर इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फाइनाइट वायर है, अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट करते तो टोटल फोर्स ऑब्वियसली हमें इन्फाइनाइट मिलता, तो बट हम क्या करें यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L, तो ड्यू टू वन वायर, सो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई दैट इज I1 I2/D, तो जो फोर्स होगा, फोर्स लगभग बराबर है, अगर देखें तो चाहे फोर्स F21 निकालें या F12 निकालें या F21 इज आल्सो इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2/D, और F12 इज आल्सो सेम, ठीक है, बट डिफरेंस क्या, डिफरेंस है जस्ट डायरेक्शन का, ठीक है, तो यही डिफरेंस है, तो इसलिए हमने लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालें तो F म्यू 0/2 पाई I1 I2/D, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फिर हमने लिखा है तो देयर फोर्स वी कैन कंक्लूड इन दिस लेक्चर नाउ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, if current are parallel they will attract, two parallel current will attract, okay, and if current are anti-parallel one up and one down then the force will be repulsive। हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे, आपके लिए असाइनमेंट की तरह हो गया। अब मान के चलिए कि एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ करंट जा रहा है, तब देखिए कैसा फोर्स लगता है। तो ये आपको मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिएगा क्या रिपल्सिव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग असाइनमेंट को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में
सबमिट करिएगा। रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। अब आपको क्या करना, आपको जूम करना है कि दो वायर हैं, सेम प्रॉब्लम है, जस्ट उसमें एक में करंट ऊपर की तरफ ले लेंगे, एक में करंट नीचे की तरफ ले लेंगे, फिर देखेंगे फोर्स कैसा लगता है। ठीक है, सो मीन्स आई कैन नाउ से दैट व्हाट एवर वी लर्न इन थ्योरी दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो ये हमने 2-3 प्रॉब्लम आपको बताया है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लेते हैं कि एक करंट है, ऐसा करंट है जो एक वायर है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये, ए लॉन्ग वायर इज बेंट एट राइट एंगल एट ओरिजिन एंड प्लेस along x and y axis carries a current I, find the magnetic field at a point P00Z ड्यू टू दिस वायर। मतलब क्या है, एक मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स है, ये Z है, ये X है, Y है, एक वायर है, वायर को 90 डिग्री मोड़ दिया गया है, मोड़ के इस पर रख दिया गया है। ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है जो 00Z पे है, यहाँ पे इन वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। आप लोग अगर पहला वाला प्रॉब्लम, अगर आपने पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर आपने समझ में आया तो आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको इलोबरेट करता हूँ, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बुक में दिया है ग्रिफिथ में उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हमें पता है फ्रॉम सोल्यूशन अगर देखें फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ वी नो दैट μ0/4π = I dl वेक्टर प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, या हमने यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख दिया, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें, पहले अगर ये लें तो आर वेक्टर क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो आर वेक्टर मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट पी वेयर वी आर मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लिया ये जेड यहाँ दिया प्रॉब्लम कितना है, जेड है, आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड, जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन, और आर यूनिट वेक्टर कितना, आर यूनिट ऑब्वियसली आर यूनिट वेक्टर विल बी जेड यूनिट वेक्टर। अब अगर डीएल देखें, डिस्प्लेसमेंट देखें, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट देखें, करंट एक्स इस डायरेक्शन इधर में है, करंट इस डायरेक्शन अपोजिट टू एक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो डीएल प्राइम वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस डीएल प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर, माइनस क्यों रखा, क्योंकि करंट जो है एक्स के अपोजिट में फ्लो हो रहा है, एक्स यूनिट वेक्टर के अपोजिट में फ्लो हो रहा है, दैट इज वाई माइनस डीएल प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर। अब अगर डीएल प्राइम और आर यूनिट वेक्टर का, आर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंथ क्या हो जाएगा, जेड डीएल मैग्नीट्यूड जेड डीएल प्राइम जेड यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट माइनस एक्स यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या दे देगी, दैट इज प्लस वाई यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, जेड डीएल प्राइम इंटू प्लस वाई यूनिट वेक्टर। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे, हमें पता होगा मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगी। हम लोग डायरेक्शन नोट कर दिए, मतलब डायरेक्शन हम लोग जान गए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं, हमने भी पीछे 2-3 प्रॉब्लम किया था, उस प्रॉब्लम्स को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें सीधा, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर निकाल सकते हैं। अगर निकालें तो क्या आएगा, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर, ये हमने अभी फार्मूला लिखा था, हमने बोला था वहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, दैट वाज इक्वल टू लेट अस से दिस कॉल V1, तो V1 इक्वल टू μ0/4π I अपॉन जेड। तो करंट और कितना डिस्टेंस पे सिचुएटेड, दैट जेड डिस्टेंस सिचुएटेड है, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और हम जस्ट आंसर यूज कर रहे हैं, तो दैट साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, इट इज पॉइंटिंग किधर, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये वायर जो है, ये जो पॉइंट पी है, वायर के 1 एंड पे रखा है, वायर के एक एंड पे रखा है ये, और वायर के मिडिल में नहीं है, वायर के कहीं और नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एजम्पशन करेंगे कि मान लेते हैं कि वायर जो है सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ लेंथ नोन है, एक तरफ अननोन लेंथ है ना, सेमी इनफाइनाइट है। अगर सेमी इनफाइनाइट हो जाता तो क्या हो जाएगा कि एक तरफ एंगल जो है थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा 2 जो है इनफाइनाइट है, दैट इज π/2। ठीक है, दैट इज π/2। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू μ0/4π I अपॉन जेड वाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आया, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण आया यहाँ पे। अब ऐसे ही इस वायर के कारण जो ये है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या हो जाएगा। सिमिलरली फॉर करंट कैरिंग वायर इन वाई डायरेक्शन, अगर देखें तो आर वेक्टर तो रिमेन सेम, दैट इज जेड यूनिट वेक्टर, आर जेड यूनिट वेक्टर, दैट इज आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, अब डीएल क्या हो जाएगा, प्लस डीएल प्राइम वाई यूनिट वेक्टर। अब वाई डायरेक्शन में आपका वायर हो गया है ना, और डीएल वेक्टर प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज जेड डीएल प्राइम, ये मैग्नीट्यूड हो गया, वाई प्राइम, इसका वाई प्राइम और इसका जेड प्राइम, तो ये दोनों क्या दे देगा,
दैट विल गिव द एक्स प्राइम। तो क्या हो जाएगा, जेड डी एल प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर, ये डी एल या प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने फिर से किया है, तो डी एल प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर का टर्म लिखते हैं तो डी एल प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर आएगा, अगर जेड भी लेते हैं तो जेड एल इसकी लेते हैं तो जेड डी एल प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पे देखें पीछे तो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस सेगमेंट का अगर मैग्नेटिक फील्ड का निकालें, किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, वाई डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये एक्स यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज पॉइंट इनटू द एक्स डायरेक्शन, सॉरी इट विल ऑलवेज पॉइंट इनटू द एक्स डायरेक्शन। So if you write the magnetic field due to semi infinite wire, अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज म्यू 0.2 पाई आई अपॉन जेड एक्स यूनिट वेक्टर। सो दिस इज B2। ठीक है, अब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या हो जाएगा, दैट इज B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। हमें पता है कि दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई अपॉन जेड एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट। अब मान लेते हैं कोई और एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैग्नीट्यूड आप लिखें तो ये वेक्टर था, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर, दैट इज √2 म्यू 0.4 पाई आई अपॉन जेड। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू परपेंडिकुलर वायर, अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर कट करते हैं तब होता है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सो दिस इज अगेन प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू द वायर। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप विच कैरीज ए स्टेडी करंट आई, लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसका ए साइड है। ठीक है, और बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए सेंटर पे कितना होगा ड्यू टू दिस वायर, जो आई करंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं ABCD ये है और ये सेंटर है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर वी नो, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमने ये लिखा है लेटर से, दैट इज B प्राइम हमने लिखा। मान लेते हैं AB के कारण अगर लिखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से यहाँ P है। ठीक है, तो मैं म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R दिया है, R डिस्टेंस पे है, तो म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, वो फार्मूला हमने दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वायर की लेंथ, अगर ये वायर की अगर लेंथ देखें स्क्वायर के वन साइड तो कितना एंगल बनाता है, दिस इज 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब हमें साइन थीटा 1 एंड थीटा 2 वैल्यू पता होगा, दैट इज 45 डिग्री 45 डिग्री। तो हम लोग अगर रख देंगे तो एक साइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करें तो म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर 1/√2 प्लस 1/√2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, दैट इज म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर 2/√2। तो B प्राइम, या इसको B1 भी बोल सकते हैं, हमने B प्राइम लिखा तो म्यू 0.2 पाई आई अपॉन √2 आर। ठीक है, अब अगर हमें चारों साइड के कारण निकालना है तो ये एक साइड के कारण आता है, इसे आप इधर भी निकालेंगे तो वो सभी, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनेगा, इसके कारण निकालें तो वो भी इतना वैल्यू आएगा, वो भी इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू उतना ही आएगी। मान लेते हैं अगर ये XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन, XY प्लेन में अगर ये स्क्वायर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में रहेगा। आप इसको डायरेक्शन वाइज भी कर सकते थे, हमने नहीं किया है। ठीक है, तो B टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दैट विल बी इक्वल टू 4B प्राइम, 4 टाइम्स magnetic field, that is 4 mu 0 I upon 2/√2 pi r, since there are 4 sides of the square। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक, दैट B इज इक्वल टू √2 mu 0 पाई म्यू 0 I अपॉन पाई r। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये हमने इसमें इस टॉपिक में इस वाले प्रॉब्लम्स हमने ये कवर किए, जितने भी नॉर्मली अगर जो प्रॉब्लम्स मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट वायर के कारण अगर कैलकुलेट करें तो स्ट्रेट वायर को हमने अभी स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर वायर टू स्ट्रेट वायर को हमने रेक्टेंगल मतलब परपेंडिकुलर कट कराया। अब आप कई सारे प्रॉब्लम ऐसे, आप स्क्वायर वायर को पॉलीगन बना सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप जितना आपके पास ट्रायंगल बना सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप उतनी पॉसिबिलिटी से इस सवाल को आप इस तरह के यूज करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्रिफिथ में सवाल दिए हैं, मान लीजिए अगर स्क्वायर की जगह पर रेक्टेंगल होता तब आप सॉल्व करते। ठीक है, मान लेते कि इस साइड जो फ्रंट वाली साइड A है और जो वैसी वाली साइड B है और सेंटर से उसकी डिस्टेंस R कुछ है, तो ठीक है, तो वो निकल जाता। अब ऐसे अगर आप ट्रेंगल होता तो मान लेते ट्रेंगल की साइड A है और सेंटर से वो डिस्टेंस आप निकालते तो आप मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ट्रेंगल से निकाल सकते हैं। अगर पॉलीगन है तो पॉलीगन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो आप इसको आप प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा। ये एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये असाइनमेंट सभी ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, पॉलीगन का, पेंटागन का, ठीक है, हेक्सागन का, ऑक्टागन का, आप सभी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालेंगे, ठीक है। जो पहले सॉल्व करेगा उसको इनाम मिलेगा हमारी तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे, अगर वायर को, मान लीजिए वायर अभी सर्कल बनाया था, अगर वायर को हम लोग अगर स्क्वायर बनाया था, अगर वायर को हम लोग सर्कल बना देंगे तब क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज़ very very important and that is the basics of magnetism. So that will start in, I will give in a next lecture. Thanking you very much for listening me. So this lecture is prepared due to coronavirus, so that is why I request you all to stay at home and stay safe and enjoy the lectures. I hope you are enjoying my lectures. If you enjoy, if you like my lectures, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग यूट्यूब में कमेंट करिए, सर बहुत अच्छा लग रहा है दिस नाइट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है इसको हमको कमेंट लिख के बता सकते हैं सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने, और भी आपके दोस्त होंगे, क्योंकि बिलासपुर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, तो आपके और दोस्त होंगे जो बीएससी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आप वो लोग भी घर पे रह रहे होंगे, तो आप उनको भी हमारा ये यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, और उनको बोलो सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को, तो उनको भी एडवांटेज मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।